ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਵਰੂਪ ਰਾਏ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਅੱਜ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਵਰੂਪ ਰਾਏ ਚੌਧਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ? ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਵਰੂਪ ਰਾਏ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਵਰੂਪ ਰਾਏ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਵਰੂਪ ਰਾਏ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ IAS ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ, 2 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਹ, ਤੇ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨਾਮ ਹੈ, ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਰੂਪ ਰਾਏ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਮੈਂਟੋਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਵਰੂਪ ਰਾਏ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰ? ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪਣਾ जी मेरा नाम डॉक्टर राजरूप फूलिया है। मैं हरियाणा से हूँ और हरियाणा गवर्नमेंट में जैसे आपने बताया है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में रहा। 1983 में मैंने ये एग्ज़ाम पास किया और हरियाणा में आया था और 2014 में मैं रिटायर हुआ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, जैसे आपने बताया जी। और ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ 2 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ। जी मेरा 1983 से लेकर के और 2014 तक बहुत सारे विभागों में रहने का मौका मिला है, अलग अलग पदों पे, SDM से लेकर के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर यमुनानगर, नारनौल, कमिश्नर हिसार डिवीज़न, और जैसे आपने बताया 2 यूनिवर्सिटीज़, एक गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी है हिसार में, वहाँ के वाइस चांसलर, और एक चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी है हरियाणा गवर्नमेंट की ही सिरसा में, उनका वाइस चांसलर। इसके अलावा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हरियाणा का चेयरमैन भी मैं रहा हूँ, कमिश्नर इन्वायरमेंट रहा हूँ, कमिश्नर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रहा हूँ हरियाणा में ही, और इस तरह अलग अलग पदों पर डायरेक्टर और दूसरे पदों पर IAS के रहा हूँ हरियाणा में जी। सर ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਐਲੋਪੈਥੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੈਲਥ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦਾ 98% ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇਲਾਜ ਪੱਧਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪੱਧਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਆਯੁਰਵੈਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ 2% ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਵਰੂਪ ਰਾਏ ਚੌਧਰੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੈਚੁਰੋਪੈਥੀ ਇਸ ਪੱਧਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਆਚਾਰਿਆ ਮੁਨੀਸ਼ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? मेरे ख्याल में तो इसमें जो हमारी पिछली बैकग्राउंड है वो काम करती है कि भारत में हम जो लोग जितने भी यहाँ पैदा हुए हैं, अधिकतर लोग खासकर जो ग्रामीण बैकग्राउंड से, मैं ग्राम की बैकग्राउंड से आता हूँ, पानीपत ज़िले में मेरा गांव है और एक गरीब परिवार से आता हूँ। तो जो लोग इस तरह की पृष्ठभूमि से आते हैं तो उनका जो जुड़ाव है वो जो दूसरी पद्धतियाँ हैं, भारत की जो अपनी पद्धतियाँ थी, एक तरह से नेचुरोपैथी कहिए, उसको आप आयुर्वेद कहिए, होम्योपैथी या दूसरी जो भी चीज़ें थी, या गांव के अपने तरीके हैं दवाइयों को, बीमारियों को ठीक करने के, स्वस्थ रहने के, तो उनके साथ उनका लगाव रहता है। खासकर जब बचपन से लेके जब आप बड़े होते हैं वहाँ पे, तो उन मूल्यों के साथ, उस व्यवस्था के साथ, उन तौर तरीक़ों के साथ आप जीते हो। बाद में वो कई बार जब आप कोई IAS के या बड़े पदों पे आते हो तो आप बदल के अंग्रेज़ी स्टाइल में जाने लगते हो। वो दवाई की तरफ भी होता है, पहनावे में भी होता है, आपके रहन सहन के तरीक़ों में भी होता है, सोच में भी कई बार होता है। लेकिन मैंने एक चीज़ ये देखी है और हर एक ये अनुभव करेगा कि भारत की जो भी चीज़ें थी, चाहे वो अपनी दवा दारू की सिस्टम थे, रहने की व्यवस्थाएं थी, खान पान था, पहनावा था, खेती थी, व्यवहार था, वो सारी चीज़ें लोगों के अनुभव पर बेस्ड थी। वो समाज ने एक बड़ी सोच समझ के बहुत सालों तक उसको परख के और इस तरह से बनाया होता था, तो तभी वो चीज़ हमारे खाने में शामिल होती थी, तभी वो चीज़ हमारे व्यवहार में आती थी।
ठीक है, कुछ चीज़ों को छोड़ दीजिए जो कुरीतियाँ हों व्यवहार में, उनके अलावा जो चीज़ें बाकी होती थी वो अधिकतर ये अनुभव किया गया है कि वो एक परखी हुई जानी हुई होती थी, जिससे समाज बेहतर तरीके से चलता था एक तरह से। तो मेरा उस चीज़ों से लगाव शुरू से था, एक तो वो कारण रहा। दूसरा ये भी रहा कि मैं एक आध्यात्मिक परिवार से जुड़ा रहा, आर्य समाज में विश्वास करने वाले परिवार से पैदा हुआ, और बाद में मैं एक इंस्टीट्यूशन था ब्रह्मा कुमारीज़ का, उसमें चला गया बचपन से, इसलिए मैंने शादी नहीं की फिर बाद में। और मैं इसी तरह समाज सेवा में ही या पढ़ाई और दूसरे कामों में ही अपना सारा समय लगाता रहा। तो मुझे अध्यात्म में थोड़ी रुचि थी, तो इस करके मैं मेडिटेशन या इस तरह की जो चीज़ें हैं उनमें भी जाता रहा, अध्यात्म को जानता रहा। तो उस लगाव के कारण से मेरा पहले से मेरी पृष्ठभूमि थी इस चीज़ की, और मैंने फिर उन चीज़ों को परखा भी, क्योंकि ज़िंदगी में जैसे मैं बचपन में हम जो खाना सिंपल खाते थे, तो अगर आप सादा खाना खाते हैं और फालतू की चीज़ें नहीं खाते जो आजकल लोग खा रहे हैं ज़्यादातर, ड्रिंक्स नहीं करते, आप स्मोकिंग नहीं करते, ड्रग्स नहीं लेते, और या फिर ये जो आजकल के फास्ट फूड आ गए इनमें भी सब इसी तरह की पॉइजनस चीज़ें होती हैं, अगर आप इनके आदी नहीं बनते, हाँ सात्विक भोजन अपना खुद बना के, मैं अपना खुद बना के खाता हूँ, तो उससे आपके शरीर में पहली बात तो बीमारियाँ नहीं आती। मुझे अधिकतर बीमारियाँ अभी तक नहीं हुई मुझे, और दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हमारा शरीर अगर हम उसे ना बिगाड़ें तो वो अपने आप से ही स्वस्थ रहता है, और कोई चीज़ ऊपर नीचे हो जाए तो उसको खुद ही संभाल लेता, खुद ही उसकी दवा बन जाता है, या हमारे खाने से ही वो ठीक हो जाती है, खाते रहने से। तो इसलिए मेरा विश्वास इस चीज़ पे था कि ये चीज़ें जो है इनका वैल्यू है, और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी हैं, हमारी बेहतरी के लिए ज़रूरी है। अब आए हम लोग डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी की तरफ, कि डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जो है वो बेसिकली, मैंने अभी उनसे भी बात की है, उनको मैंने पूछा है कि आप तो डॉक्टर ना थे, तो आप डॉक्टर कैसे बन गए? तो उन्होंने भी अपने ढंग से जवाब दिया है, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि उन्होंने जिस तरह के से डॉक्टर बने हैं वो तो उनका एक अलग कारण था, लेकिन डॉक्टर बनने में जो रोल आपका रहा है, किस तरीके से उनको मोटिवेट किया, वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को। मेरा असल में क्या था कि विश्वरूप जी को का संपर्क मेरे साथ जो हुआ 15-20 साल पहले, तो उस समय ये मेमोरी के मास्टर थे, ये बच्चों को की मेमोरी बढ़ाते थे, और ख़ुद ये इंजीनियर तो हैं ही, पढ़े लिखे इंजीनियर थे, तो अनुभवी थे और शार्प दिमाग के हैं, तो इसलिए ये वो काम करते थे, और थोड़ी ये माइंड की भी ट्रेनिंग देते थे, माइंड मैनेजमेंट की लिख देते थे। तो मैंने इनको इस चीज़ के लिए प्रेरित किया कि आप माइंड, और माइंड के साथ में बॉडी भी है, क्योंकि अकेला माइंड भी तब तक ठीक काम नहीं करेगा जब तक उसकी बॉडी ठीक नहीं होगी, स्वस्थ नहीं होगी, अच्छी नहीं होगी, चुस्त नहीं होगी। हाँ, तो इसलिए मैं इनको बार बार इस चीज़ के लिए करता रहा कि विश्वरूप जी आप जो है ना, ये हेल्थ की साइड को टेकअप करो। और धीरे धीरे कुछ समय तो लगा, मेरा ख्याल लगता है 1-2 साल लगा होगा। हाँ, मैं उनको बार बार जब भी, क्योंकि मुझे ये प्रेरणा होती थी कि विश्वरूप जी के अंदर जितनी स्फूर्ति है, जितनी उसमें मेहनत करने का मादा है, और जितना वो अपना समय लगाते हैं मेहनत से और सब चीज़ों से, तो इस तरह से अगर ये इस चीज़ को लेंगे तो इससे समाज का और ज़्यादा भला होगा। सिर्फ मेमोरी से तो बच्चों का भला होता है, लेकिन इससे बच्चों का भी भला होगा, बड़ों का भी भला होगा, सबका भला होगा। तो इसलिए मैं उनको बार बार इस चीज़ के लिए प्रेरित करता था। और मतलब ये खुशी की बात है, मेरे लिए भी ये गौरव की बात है कि वो मेरी बात उनको जची, और उन्होंने उस चीज़ को इतना ज़बरदस्ती से पकड़ा, ज़ोर से पकड़ा, और इतनी गति से उसको किया कि अब वो मुझे लगता है कि 10-1 साल पहले उन्होंने शुरू किया होगा, ये 10 साल के अंदर वो जो है जिस जगह पे वो पहुंच गए हैं, वो मैं नहीं समझता हूं कि उनके अलावा कोई और पहुंच सकता था। एक बात बताइए कि जिस समय आपने उनको प्रेरित किया कि आप जो है वो ये होलिस्टिक हेल्थ की तरफ आइए, कि माइंड मैनेजमेंट तो ठीक है, लेकिन जब तक पूरी सेहत नहीं ठीक होगी इंसान की, तब तक वो उसका माइंड भी जो है वो उतना स्वस्थ नहीं हो पाएगा। तो किमें लगता कि ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੇ ਬੇਬਾਕ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ। ਕੋਈ ਕਿੱਸਾ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। वो बात तो ठीक है कि वो जिस चीज़ में चले, पहले हमने उसको फूड की तरफ से शुरू किया था। मैं इनको बहुत जगह ऑर्गेनिक के जहाँ ट्रेनिंग होती है, ऑर्गेनिक के फार्मिंग जहाँ हो रही होती थी, वहाँ पर लेकर गया। इन्होंने भी उसके भी एक्सपेरिमेंट किए। वीट ग्रास को इन्होंने उगा करके जो है कैंसर के मरीजों को ठीक किया वीट ग्रास से। वीट ग्रास पे इन्होंने किताब भी लिखी। ऐसे अलग अलग चीज़ों पर इनका वो खोज चलती रही, और ये सारी दुनिया में जो भी ज्ञान था
जर्नलों में औरों में, फ़ॉरेन के उनके अब पहले से लेके अब तक का, वो सब ये खोजते रहे उसमें, और खोज खोज के इनको नई नई चीज़ें जो मिलती रही है उस हिसाब से उसमें अपने नए नए टॉपिक जोड़ते रहे। कभी हार्ट के बारे में, कभी डायबिटीज़ के बारे में, कभी ये जो बीमारियां जो हमारे यहाँ आ रही थी और बहुत बड़ी महामारियों के रूप में पैदा हो रही थी, जिस पे हमारा देश का और हर एक का बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा था, उस पे इन्होंने मतलब बहुत ऐसी ऐसी नई चीज़ें की जो हम लोगों को मैंने आईएएस में पढ़ा, पूरी दुनिया भी घूमी, सारे डिपार्टमेंटों में भी रहे, उसके बावजूद हम नहीं जान सके उसमें कि इसकी असलियत क्या है और ये चीज़ ठीक हो सकती है और इतनी आसानी से ठीक हो सकती हैं खाने से। तो इनका ये कंट्रीब्यूशन था कि इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत से सारी चीज़ों को छाना बीना, फिर जो चीज़ इनको मिलती थी तो उसको ये अपने तरीके से जनता में लाते थे, लोगों के सामने लाते थे। तो मुझे ये लगता है कि जैसे आप बात कह रहे हो ना कि कई बार वो सिस्टम के खिलाफ जाते हैं, तो वो एक तरीका भी होता है टीच करने वाले टीचर का, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को थोड़ा सा ये चीज़ दे के ना करो, उसको ठंडे ठंडे में कहो, तो दूसरे आदमी को चौंकना नहीं होता, वो चौंकता नहीं है। तो ये कई बार उसको चौंकाने वाले एंगल से मैं समझता हूँ, उस हिसाब से इसको ये करना चाहते हैं कि ये क्या है। जैसे उन्होंने इस पर किताब लिखी हार्ट माफिया, तो कि हार्ट का, ये बात सही है कि हाँ कोई माफिया इतना बड़ा नहीं है मान लो, लेकिन उसमें वो समझाना चाहते थे लोगों को कि ये जिस तरह से माफिया में छीना झपटी होती है, इस तरह बेवजह से इन चीज़ों से उस तरह की होने वाली चीज़ इस बिजनेस में, इस प्रोफेशन में भी है। तो इसलिए बल्कि उसके कारण तो उनकी कार ही जला दी गई थी, उनके ऑफिस के सामने ही जो है दिन में ही उनकी कार को आग लगा दी गई थी जो है इस चीज़ के कारण से। तो ये तो है कि जो लॉबीज़ हैं जो इफ़ेक्ट होती हैं, जो नहीं चाहती हैं कि ये सच्चाइयाँ सामने जाएं, उनका बिजनेस में इफ़ेक्ट होने का डर लगता है, तो वो इस चीज़ के लिए करती हैं, करेंगी और किया भी है। लेकिन किस्मत से ये है कि उनके खिलाफ़ और कोई ज़्यादा बड़ी शिकायतें या वो नहीं पहुंची, क्योंकि लोगों को उनकी बात अपील करती थी। आप जैसे लोग जो उनको सुनते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, उनकी हिम्मत की दाद देते हैं, तो उनकी बैकिंग कह लीजिए, उनकी ब्लेसिंग कह लीजिए, उनकी अच्छी भावनाएं कह लीजिए, उनका साथ और सपोर्ट और सहयोग जो है, उन सारी चीज़ों के कारण से ये मतलब इन चीज़ों से अभी तक तो बचे हैं। ਅੱਛਾ, ਕਦੇ ਐਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾ, मैं आया तो देखो जी मैं फंस गया? नहीं, ऐसा उनका कभी नहीं रहा है। मुझे लगता है कि उन्होंने इसके खतरों को देख करके तब ये किया था, बल्कि हम भी उनको कभी और खतरों से आगाह करते रहते हैं कि ये बहुत बड़ी लॉबी है, इसलिए आप उसको तरीके से करने को, लेकिन ये उनका अपना ही स्टाइल है और उन्होंने कभी इस चीज़ के लिए पश्चाताप नहीं किया कि आपने मुझे इस तरफ लाया है। ये चीज़ की, इस तरह की जो बड़ी बड़ी चीज़ें हुई हैं उसमें उन्होंने बल्कि मुझे ढंग से बताया भी नहीं कि ऐसी चीज़ हो गई है इस तरह की। बल्कि पहले जब कोई छोटी मोटी चीज़ होती थी, कोई पुलिस वाला आके परेशान करता था या कोई इलाके के गुंडे उंडे आके कोई पैसे वार से लेने की कोशिशें करते थे या किसी और के माध्यम से कुछ कंप्लेंट करा के परेशान कराने की कोशिश करते थे, तब वो मुझे कहते थे और मैं उनको मतलब सहयोग करता था इस चीज़ में जो है। और लोगों को भी पता था कि इनका कनेक्शन है शुरू में, और अब तो उनको बहुत लोग जानने वाले हैं, बहुत लोग उनको चाहने वाले हैं हर फील्ड में, हर क्षेत्र में, हर प्रोफेशन में जो है। ਹੁਣ ਆਈਏ ਆਪਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਵਰੂਪ ਰਾਜ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਡਾਕਟਰੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 98% ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਣ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ, ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਚੁਰੋਪੈਥੀ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਧਤੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਪੱਧਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਂਟੋਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ? मुझे तो ये लगता है कि मेरा मेंटोर और आप सब का भी एक तरह से वो ऊपर वाला ही होता है, वाहिगुरु होता है, ठीक है। जो इंसान को मतलब भारत में तो क्योंकि हम सब उसको मानते हैं, ऐसी शक्तियों को मानते हैं, तो उनको जो सही लोग हैं उनको सही प्रेरणा अपने आप से होती रहती है। तो मैं हालांकि एक आध्यात्मिक संस्थान में बहुत लंबे समय तक से रहा हूँ, बचपन से लेकर के, और मैंने सारा उसमें अपना समय, पैसा, बहुत चीज़ें लगाई हैं अपना सारा, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी प्रेरणा भी ये नहीं थी, मेरे अपनी ज़िंदगी और अपनी सोच का परिणाम था ये। क्योंकि हमारे यहाँ जो आध्यात्मिक संस्थान हैं
उनकी भी अपनी एक लिमिटेड दायरा हो जाता है। कोई भी जो है वो फिर अपने को ही बढ़ाने में, अपनी उनकी ब्रांचेज खोलने में, अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाने में, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने में, अपना योद्धा बढ़ाने में, उस तरफ की चीज़ें हो जाती हैं अधिकतर में जो है ना। लेकिन ये जो चीज़ है ये उन सब से पार होकर होती है। तो ये तो इसलिए है कि अभी जब हमने देखा कि फूड पे क्राइसिस है, लोगों का जो खाना है वो खाने के ऊपर ही क्राइसिस है। तो जो खाना क्राइसिस है तो आदमी बीमार होगा, खाने से ही बीमार होगा आधी से ज़्यादा चीज़ों में। तो ऐसी हालात में मतलब हम उस मुहाने पे खड़े हैं कि अगर हमने फूड को ठीक नहीं किया और हमें अच्छा फूड नहीं मिला तो हम दवाइयों से भी नहीं बच सकेंगे, जो है दवाइयों के कारण भी हमारी ज़िंदगी नहीं बचेगी। इसलिए मैंने रिटायरमेंट के बाद से जो ऑर्गेनिक फार्मर्स को बढ़ावा देना शुरू किया उनको, कि वो ऑर्गेनिक उगाएं। और उनकी जो सबसे बड़ी समस्या होती है कि उनको मार्केटिंग नहीं मिलती, तो उनकी मार्केटिंग की समस्या को मैंने दूर किया। पहले मतलब शुरू में तो मैंने पहले साल तो अपनी तनख्वाह के में से ये आधी तनख्वाह जो पेंशन मिलती थी मुझे, उसी से मैंने उनके प्रोडक्ट को खुद ख़रीदा। गुड़ जैसे बनाते थे हरियाणा में, गुड़ वो गन्ना था तो वो चीनी मिल को देते थे, उससे उन्होंने गुड़, शक्कर या इस तरह की जो चीज़ें बनाई, तो उसको मैंने खुद खरीद करके चावल नहीं, मैं इसको प्रमोट करना है। अगर किसी चीज़ को प्रमोट करना है तो जैसे चाय को प्रमोट करने के लिए पहले मुफ्त दे के आना पड़ता है। तो उस समय फिर मैंने ऑफिसर्स को, मिनिस्टर्स को और लोगों को, जानकारों को, अपने रिश्तेदारों को, उन सबको मैंने इसको मुफ्त में दिया। तो मैं उन किसानों को लेकर के गया साथ में, और ऑफिसेज़ में जाके सीनियर मिनिस्टर से, ऑफिसर से, पुलिस ऑफिसर से, और भी जितने ऑफिसेज़ थे उन सब में जा कर के जाके उनको दिया कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं इनके, आप टेस्ट कराना चाहें टेस्ट कराइए। मुफ्त में दिए उनको ताकि उनको आदत पड़े। उन्होंने खाया तो फिर उनसे डिमांड जनरेट होने लगी। तो आज जो है यहाँ पे एक पूरी मार्केट चलती है जिसमें वो हमारे किसान भी आते हैं यमुनानगर कुरुक्षेत्र से, वो यहाँ बेच कर जाते हैं, उनको अच्छे प्रोडक्ट वो मिलते हैं पैसे। अब उनको सपोर्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक गल कह सकते हो तुसी कि खरीददार हैगे ने, जे असली प्रोडक्ट मिलता है तो वो खरीददार हैगे ने, भावें महंगा ही खरीदण। हाँ, बस वो कुछ समय लगेगा, आपको थोड़ा जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो किसान होते हैं उनको ये आदत छूटी हुई है, उनसे बिजनेस करना नहीं आता, किसी के पास जाके ये बताना मेरे पास ये चीज़ है, ऐसा है, तो उनको वो थोड़ा सा कराना पड़ता है, वो झिझक होती है उनमें। एक बार शुरू हो जाए फिर वो उनका काम। अभी तो लोग ये होता है कि उनके घरों से ही आकर ले जाते हैं। वो जो गेहूँ उगाते हैं लोग पहले से ही बुक कर लेते हैं, दाम भी उनको 3 गुने देते हैं, 500 रुपये वो होगा, मतलब उनका रेट भी मतलब 5 गुना होगा दूसरों से, जो है 5000 रुपये ऐसा। और मतलब उनके घर से ही लोग ले जाते हैं, गुड़ भी, शक्कर भी, ये चीज़ें। तो एक ही छत के नीचे सारे इलाज किस तरह देखते हो तुसी? सारे इलाज मतलब एलोपैथी, हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं हो सकते हैं, वो सब भी हो सकते हैं अगर कोई इंटीग्रेटेड कर रहा है तो वो भी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं अभी भी मानी जाती हैं कि जो इनमें आयुर्वेद वगैरह या उन चीज़ों में नहीं हो पाती होंगी, जैसे जो ऑपरेशन से चीज़ें होती हैं आजकल, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई हैं, कैंसर हो गया, कोई और चीज़ें हो गई, ऐसी हो गई जिनको ऑपरेशन करके ही करना पड़ता हो, कोई एक्सीडेंट में किसी का कुछ हो गया, इस तरह की चीज़ें हों, तो उनमें शायद आयुर्वेद या होम्योपैथी के पास उसका कोई वो नहीं होता, तो उनको उससे करना पड़ता है, तो उनको उससे कर सकते हैं। दूसरा में जिसमें आयुर्वेद भी काम आता हो या दूसरी पैथीज काम आती हो तो उनको उससे भी कर सकते हैं। वो भी हो सकता है कि सारे कोई इकट्ठा करे, या नहीं करे तो कोई आयुर्वेद या एलोपैथी से, उससे आयुर्वेद या होम्योपैथी से सिर्फ उन चीज़ों का करे जो उनसे हो सकती हैं, जो एलोपैथी से होती हों उनको वो ना करें, वो एलोपैथी हॉस्पिटल में जाए। ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਸ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਆਰ ਆਰ ਫੂਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਵਰੂਪ ਰਾਏ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਸੀਗੇ, ਮਾਈਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਸਥ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ, ਹੋਲ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਰੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ।
ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਵਰੂਪ ਰਾਏ ਚੌਧਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੈਲੰਜਿਸ ਸੀਗੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗਸ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਛੱਤ ਦੇ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੂਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ, ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।